Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, I'm going to discuss reading filling the blanks, and these reading filling the blanks are from the March prediction, and this is from AP Uni from page number 5. And these reading filling the blanks is of the hard level, because when I teach the student, then most of the students have difficulty in reading filling the blanks, because they will say कि ma'am, in reading and writing filling the blanks we can manage, because for one blank we will get 4 to 5 option, but for reading filling the blanks it's very difficult for us to choose the one blank for one particular option, you can say from 10 to 12 blanks. So we are facing difficulty in reading filling the blanks. So if you are facing the same problem, means you are facing some problems in reading filling the blanks, so this is the video for you. So these are the blanks from the prediction, or you can say कि these are the questions that are repeating again and again. So my motive to making this video is like you can take the benefit from my videos, because sometime most of the students can't afford the fees, they can't go to the institutes. So let's start the video. So first example is from page number 5, and this is the hard level, and the blank is 128, and it's a health professional. So sometime in reading filling the blanks, most of the confusion is that ki you don't know the meanings of the words that are given here. So these are the meanings, and in this paragraph we have 5 blanks, and you can say ki for 5 blanks we have 12 to 13 options. So first you need to understand the meaning of the words. So first is the acceptance, then public. Acceptance is like कि आप किसी चीज को accept कर रहे हो. Public is like people. Proportion is like कि इतना proportion इस चीज का है, इतनी मात्रा इस चीज की है. Independence is like आजादी. Contrast क्या होता है कि आप दो चीजों को differentiate कर रहे हो, a difference between the two things. Next is the majority, कि mostly जो ऐसा होता है, majority मतलब 10 में से जो 9 लोग हैं वो इस चीज को follow कर रहे हैं. Elder, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. हेल्थ, देन थेरेपिस्ट, जैसे प्रोफेशनल है उसका सिनोनिम हमारे पास थेरेपिस्ट हो सकता है. देन डॉक्टर्स हो गया, कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करना. देन जर्नल. So let's start. People who visit health professional tend to be older than the dash population. तो इसमें उसने बोला है कि जो लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स को विजिट करते हैं वो ओल्डर होते हैं एज कम्पेयर टू दिस पॉपुलेशन, बिकॉज जो इलनेस है वो एज के साथ इंक्रीज होती है. सो अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड है हमारे पास आफ्टर ब्लैंक, तो यहाँ पे पब्लिक वर्ड है हमारे पास या फिर जनरल वर्ड है. तो पब्लिक हम ऑलरेडी लोगों के लिए यूज करते हैं, तो अगर हम पब्लिक यूज करेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं आएगा. तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन है तो हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, जनरल पॉपुलेशन, बिकॉज जो इलनेस है वो इंक्रीज कर रही है एज के साथ. However, the dash of the population who visited complementary health dash was highest between the ages 25 and 64 years. So इसका जो आंसर है वो यहीं पे है. अब उसने बोला कि जो इतने पॉपुलेशन है वो इतने कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ उसको विजिट करती है, तो उसका जो हाईएस्ट रेशो है वो बिटवीन द एजेस 25 एंड 64 ईयर्स है. तो इट मीन्स इन दोनों एजेस का उसने एक तरह से प्रपोर्शन ले लिया, राउंड ऑफ फिगर ले ली कि इतने जो लोग हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ उसको विजिट करते हैं, और वो इसके बीच में हमारे पास लाई करता है. तो इट मीन्स उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी ले सकते हैं और प्रपोर्शन भी ले सकते हैं. और मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट है वो मेजॉरिटी लेते हैं कि ऑफ दी पॉपुलेशन आ गया मैम तो हम मेजॉरिटी ही लेंगे, बट ऐसा नहीं है. आपने आगे भी चेक करना है कि उसने पूरी जो ईयर्स हैं, पूरी जो एजेस हैं, लाइक आप 100 एजेस तक ले रहे हो, तो इसमें उसने इतनी चीज का ही प्रपोर्शन लिया है, 25 से 64 का ही लिया है. तो इसलिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर वो प्रपोर्शन यूज करेंगे. आपने पूरी लाइन को पढ़ना है ध्यान से. सो वो विजिटेड कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ. तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है प्रोफेशनल्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोफेशनल ही है, बट हम हेल्थ डॉक्टर्स कभी नहीं बोलते, हम हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं या थेरेपिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज यूज करा है. तो थेरेपी के लिए जो सिनोनिम होता है हमारे पास वो प्रोफेशनल ही होता है. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर थेरेपिस्ट. Health therapist was highest between this. The lower rates for people,
अब उसने कहा है कि जो लोअर रेट फॉर पीपल है एज 65 ईयर, तो जो 65 ईयर्स के लोग हैं उनके लिए जो लोअर रेट है, एंड ओवर दिस, तो इससे जो ऊपर है, विद द रेट ऑफ विजिट्स टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स विच इंक्रीज स्टेडली विद द इंक्रीजिंग एज। तो उसने बोला है कि जो इस एज के हैं या उससे ऊपर वाले हैं, तो इट मीन्स वो दो एजेस का कंपैरिजन कर रहा है, इससे और इसके ऊपर वाले से। तो इट मीन्स कॉन्ट्रास्टेड, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो चीजों के बीच में डिफरेंस ले रहे हो तो हम कॉन्ट्रास्ट वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, तो डिफरेंस उसने वर्ड ले लिया, तो डिफरेंस का सिनोनिम क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट। माइट इंक्लूड लोअर लेवल ऑफ डैश ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज बाय ओल्डर पीपल, तो उसने बोला कि वो इस तरह की थेरेपीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट मीन्स उसका ऑल्टरनेटिव उसने क्या लिया कि ओल्डर पीपल मे हैव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रायोरिटीज, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं यंगर पीपल की बजाय, बिकॉज जो उनकी हेल्थ है वो ऑन एवरेज तुम कह सकते हो कि वो ज्यादा बढ़ रही है, खराब हो रही है, एंड देयर इनकम्स आर जनरली लोअर एज कंपेयर टू दी यंगर पीपल। सो लोअर लेवल ऑफ डैश, तो मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोअर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकॉज उसके अलावा इसमें कोई मीनिंग हमारे पास नहीं आएगा। सो यू हैव टू चूज योर आंसर। पॉपुलेशन है तो हम पब्लिक वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जहां पे पब्लिक वर्ड हमारे पास यूज हो रहा है तो हम वहां पे वो चीज नहीं यूज कर सकते हैं। प्रपोर्शन हो गया क्योंकि दो एजेस का ले लिया, हेल्थ है तो थेरेपिस्ट हो गए क्योंकि थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन ओवर दो चीजों के बीच में डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट हो गया, देन एक्सेप्टेंस। लेट्स चेक द आंसर। सो दीज आर द आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट। So this is Australia and this is also from the hard level. So first we will check the option. Now we have only 5 blanks, but I think we have 10 options here. So you have to choose the right option for the first blank. So first is the revive. तो रिवाइव क्या होता है कि आप किसी चीज को उसी तरह से रख रहे हो, उसी की तरह कीप अप कर रहे हो, मतलब सेम थिंग यू आर जस्ट कीपिंग अप। देन इमर्ज्ड, सो इमर्ज्ड क्या होता है कि आपने उस चीज को मर्ज कर दिया, उसके बाद उससे कुछ नई चीज जो है वो पैदा हुई है, तो उसको हम बोलते हैं इमर्ज। इंक्रीजिंगली ज्यादा हो गया, एग्जामिन हो गया कि आप चीज की देख रेख करना। नेक्स्ट है ट्रांसपायर्ड, सो ट्रांसपायर्ड इज लाइक रिसना, फॉर एग्जाम्पल यू आर बॉइलिंग दी वाटर, देन वो रिस रहा है, उसकी जो भाप है वो उड़ रही है। वो उसके बाद हो गया हमारे पास रिटेन, तो रिटेन भी क्या होता है कि आप उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हो। नेक्स्ट इज सेटलमेंट, देन कॉन्टिन्यूस वर्ड है। नेक्स्ट इज दी स्पार्सली, स्पार्सली मीन्स मेसी, फोर्सफुल मतलब फोर्सफुली किसी चीज को करना, और रिमेन क्या हो गया हमारे पास, उसी तरह से रहना। तो इसमें दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट जो मीनिंग है वो हमारे पास सेम है। So first है Australia is a dynamic multicultural society. This is the paragraph about Australia and this is the basic introduction, viewed by many as the world's most desirable place to live. और ये world का desirable place है रहने के लिए। Here Frank Welsh traces Australia intriguing and varied history to dash. So यहाँ पे to है, तो टू के साथ हमारे पास कुछ एक्शन वर्ब आएगी। हाउ दी सोसाइटी दिस फ्रॉम इट्स एंशिएंट ट्राइब्स एंड अर्लीस्ट ब्रिटिश कन्विक्ट डैश टू टूडेज मॉडर्न नेशन। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया इंट्रिगिंग एंड वेरिड हिस्ट्री टू डैश, की जो सोसाइटी है वो कैसे क्या कर रही है। तो टू है, अगर हम कुछ एक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, एग्जामिन, कि हमने देख रेख करनी है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द ऑस्ट्रेलिया, कि दिस इज अबाउट मल्टी कल्चरल सोसाइटी एंड दिस इज द ट्रेसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंट्रिगिंग एंड वेरिड हिस्ट्री टू डैश। इट मीन्स टू एग्जामिन, बिकॉज टू है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी हमारे पास। हाउ दिस सोसाइटी, मतलब ये जो सोसाइटी है वो किस तरह से बनी, तो आगे उसने रीजन दिया है फ्रॉम इट्स एंशिएंट ट्राइब्स एंड अर्लीस्ट ब्रिटिश कन्विक्ट, तो किस तरह से हम उसको जानते हैं, तो हम उसको जानते हैं, इट मीन्स टू बी नोन, मतलब जिससे हमें पता चल रहा है, तो इट्स लाइक इमर्ज्ड। बिकॉज यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब है। एंड अर्लीस्ट ब्रिटिश कन्विक्ट डैश टू टूडेज मॉडर्न नेशन, तो इट मीन्स कि उन्होंने जो था
वो मॉडर्न नेशन के साथ सेटलमेंट्स किए थे, जो हमारे पास अर्लीस्ट ट्राइब्स थी और जो हमारे पास ब्रिटिश कन्विक्ट था. तो इट मीन्स हियर इज द सेटलमेंट टू टुडेज modern nation, one that strong link with its colonial past but is dash independent and diverse. तो उसने वो बताया कि उसके जो लिंक्स थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे कॉलोनियल पास्ट के साथ, मतलब उन्होंने अपने जो लिंक थे वो उसी तरह से रखे. तो इट मीन्स जो हमारे पास उसी तरह से रखना है, दैट इज द वर्ड रिटेन. रिटेन का क्या मतलब होता है कि जो चीज है आप उसी तरह को कीप अप कर रहे हो. इज डैश इंडिपेंडेंट एंड डाइवर्स. अब वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है और हमारे पास ज्यादा डाइवर्स भी हो गया. सो इट मीन्स इट इज इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट एंड इज डाइवर्स नेशन. सो फर्स्ट वन इज द एग्जामिन. फर्स्ट वी विल चेक द ऑप्शंस. एग्जामिन, emerged, settlement, then retain, then increasingly. Next option, next question. So this is question number 3. 117, colorful poisons frogs. सो दीज आर दी ऑप्शन. रेजरवायर क्या होता है कि किसी भी चीज का रेजरवायर हो सकता है जो आप उसको संभाल के रख रहे हो. असेंशियल हो गया जरूरी. मेजर आपको बताया था कि 10 में से 9 अगर चीज हो रही है तो वो मेजर हो गया. डाइवर्सिटी, देन अकॉर्डेंट, ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल वर्ड हम मोस्टली फॉरेस्ट के लिए यूज कर लेते हैं. देन काउंटर, टेरिटरीज एंड दी र्यून. र्यून हो गया किसी चीज को खराब करना. सो दिस इज द पैराग्राफ विच इज वेरी इजी. So colorful poison frogs in the Amazon forest की बात कर रहा है. Over their great dash to ancestor that lived into the region from the Andes. So Andes. So this is their great dash to the ancestors. So it हम आगे भी पढ़ते हैं इसको. Several times during the last 10 million years, a new study from the University of Texas at this. This is the first study about the colorful poison frogs show that the Andes have been a dash source of diversity. So A है, it means कि जो ये चीज है वो dash source of diversity है for the Amazon basin. So it means कि you can also find out the answer of the first blank. So diversity, this is the their great diversity to the ancestor. From this line you can find out the answer of the first blank क्योंकि diversity word हमारे पास given है. So this is the first study to show that Andes have been a dash of source. So it means यही सबसे बड़ा source है. One of the largest. तो one of the largest मतलब इन सब में से एक सबसे बड़ा. So it means it is a major source of diversity for the Amazon basin. One of the largest dash of. सो ये एक तरह से आपने उस चीज को रखा हुआ है. सो रखा हुआ है इट मीन्स रेजरवायर्स, क्योंकि अगर हमारे पास फॉरेस्ट की बात हो रही है तो उसके लिए हम रेजरवायर्स वर्ड यूज करेंगे. The findings run dash to the idea that Amazonian diversity is the result of evolution only within the dashed forest itself. तो ये अपने में से ही एक तरह की हमारे पास evolution है. So अपने में से ही एक it means tropical. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो उसके साथ ये वर्ड है. इट मीन्स दीज आर द कॉलोकेशन यू कैन यूज हियर. द फाइंडिंग्स रन्स डैश टू द आइडिया. सो उस जो काउंट अगर हम कहते हैं कि फाइंडिंग्स मतलब उस चीज को हमने डिफरेंशिएट करके लेके चलना है. द फाइंडिंग रन्स डैश टू द आइडिया दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन. सो हमारे पास ऑप्शन है असेंशियल टू द आइडिया, अकॉर्डेंट टू द आइडिया या काउंटर टू द आइडिया. तो अगर हम मीनिंग लगा के देखेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट बन रहा है वो है काउंटर टू द आइडिया दैट Amazon डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन. सो हाउ यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो डाइवर्सिटी वर्ड है वो हमारे पास बहुत जगह यूज हो रहा है विद इन दी पैराग्राफ. सो इसलिए हम यहाँ पे डाइवर्सिटी वर्ड यूज करेंगे. अब उसने कहा है कि बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि Amazon बेसिन की बात हो रही है तो इट इज अ मेजर सोर्स. लार्जेस्ट रेजरवायर मतलब आप किसी चीज को संभाल के रख रहे हो तो इसलिए हम यहाँ पे रेजरवायर वर्ड यूज कर रहे हैं. देन काउंटर टू द आइडिया ऑफ दिस एंड दिस इज अबाउट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. White paper, and this is the question number 95. So first option is fences. Next is boundless, without boundaries you can say. Void is a blank space. Useless, you can't use, matlab this is a thing that you can't use. Site, then founded, then derives, then sponsored.
सो फर्स्ट है लेट अस देन सपोज द माइंड टू बी, मतलब हम अपने माइंड को सपोज कर रहे हैं एज वी से वाइट पेपर मीन्स इफ यू विल इंक्लूड द वाइट पेपर डैश ऑफ ऑल करेक्टर्स विदाउट एनी आइडिया. सो दिस इज अबाउट कि इफ यू हैव अ वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो जो वाइट पेपर है वो बिल्कुल खाली है. सो इट मीन्स कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी आइडियाज हैं देन यू कैन राइट इट डाउन. सो नेक्स्ट इज हाउ कम्स इट विदाउट एनी आइडियाज. हाउ कम्स इट, जो आइडिया है वो किस तरह से आते हैं जो हम उनको फर्निश कर सकें. वंस comes it by the vast tour which the VZ and dash fancy of men has painted on it. So it means कि white paper is like a space जहाँ पे आपको खाली जगह मिल रही है. So it is void कि वहाँ पे आप सब कुछ खाली है. So you can use your own ideas and your own feelings so that you can do something to be furnished. So next is whence comes it by the vast tour which the busy and dash fancy of men has painted on it. इट मीन्स कि विच द बिजी एंड डैश फैंसी ऑफ मैन, मतलब उसकी कुछ बाउंड्रीज नहीं है. एंडलेस वर्ड उसने यूज करा है कि पेंटेड ऑन इट विद एन ऑलमोस्ट एंडलेस वैरायटी, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू हैव आइडियाज इन योर mind. So from there you can choose the correct option here. So this is the boundless. Busy and boundless fancy of men has painted on it with an almost endless variety. Next is to this I answer in one word from experience, in that all our knowledge is dash and from that it ultimately dash itself. तो उसने बोला कि जो हमारी नॉलेज है सो इज है, तो इज के साथ हमारे पास या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी. सो थर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, फाउंडेड या स्पॉन्सर्ड. तो स्पॉन्सर्ड नहीं आ सकता. स्पॉन्सर होता है कि आप किसी चीज को कुछ करने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो, और फाउंडेड होता है कि जहां से हमें पता चल रहा है. सो इट इज फाउंडेड फ्रॉम दैट इट अल्टीमेटली ड्रैश इटसेल्फ. उसी से आप खुद को ड्राइव करते हो, खुद को लेके चलते हो. तो इट मीन्स आपने खुद से ही खुद को ड्राइव करना है. सो व्हाइट पेपर से आप गेस लगाओगे कि यहाँ पे वॉइड आएगा. और उसके बाद उसने बोला कि बिजी है एंड बाउंडलेस फैंसी ऑफ मैन, एंडलेस वैरायटी है तो इट मीन्स इट शुड बी बाउंडलेस. और इसके बाद उसने बोला है इज है तो ईडी फॉर्म आएगी. ईडी फॉर्म वाले दो ही हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे फाउंडेड यूज करा है, और यही चीजें हमें खुद को ड्राइव करती हैं तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ड्राइव इटसेल्फ. लेट्स चेक द आंसर फर्स्ट. सो दीज आर द आंसर. लेट्स डू वन मोर. दिस इज स्पोर्ट्स वुमेन. appear, focus, admit, exist, opportunity, point, chance, lost, disappear. आई थिंक जो मीनिंग्स हैं वो सबको क्लियर होंगे कि इनके क्या मीनिंग्स हैं. सो स्पोर्ट्स वुमेन रिकॉर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और उनको बचा के रखना भी जरूरी है, नीड टू बी प्रिजर्व. एंड इफ द पेपर रिकॉर्ड्स डू नॉट डैश, मतलब अगर हमें पेपर रिकॉर्ड्स नहीं मिलते तो इट मीन्स वो अपीयर नहीं होते या वो एग्जिस्ट नहीं होते. दो वर्ड्स हैं तो बच्चे मोस्टली अपीयर यूज करते हैं. तो इट मीन्स अपीयर तो होता है कि आप किसी चीज में अपीयर हो रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दे रहे हो तो दैट इज द अपीयर. एग्जिस्ट होता है कि वो हमें कहीं मिल नहीं रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड है वो एग्जिस्ट यूज करेंगे. सो वी नीड टू गेट आउट and start interviewing people. तो हमें कुछ करने की जरूरत है. not to put too fine a dash on it while we still have a dash, मतलब जबकि हमारे पास एक चांस और है. so here it is chance. have है तो singular ही आएगा. if the records are not kept in some form or another then the stories are dash, मतलब अगर हम रिकॉर्ड्स को नहीं संभाल के रखते तो जो हमारी स्टोरीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी. तो खत्म हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी या लॉस्ट हो जाएंगी. तो डिसअपियर होता है कि दिखना बंद हो जाना, लॉस्ट होता है कि जो खत्म हो गया. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लॉस्ट. सो यहाँ पे क्या वर्ड बनता है हमारे पास, अपीयर ऑन इट, फोकस ऑन इट, एडमिट, अपॉर्चुनिटी या पॉइंट. सो फोकस और पॉइंट में से एक हो सकता है बट पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग. सो वी विल चूज हियर पॉइंट ऑन इट. सो लेट्स चेक द आंसर. So this is the way ki how you can solve the blanks. So if you have any queries then you can write in the comment box. So and if you have a doubt in a particular topic then you can also write in the comment box.
But please don't forget to like my videos and to share my videos with your friends who are preparing for the PTE. And thank you so much for watching my videos.